So today we have to do question number 8 of exercise 10.3. The question is, a floor is 5 meter long and 4 meter wide. A square carpet of 3 meter is laid on the floor. Find the area of the floor that is not carpeted. In this question, two different dimensions are given to you. One is of the floor and other is of the carpet. Okay, so there is a floor. Let's suppose that this is the floor and the measurements of the floor are 5 meter and 4 meter. Okay, on this floor there is a carpet which is laid on this floor and the carpet is of square shape. ये है हमारी carpet. ठीक है, carpet. एक मिनट, give me a minute. No, ma'am, your voice is audible. Okay, so this is a rectangular floor and on that floor a carpet, a square carpet is laid which is of 3 meter. ठीक है, तो you have to find कि कितना एरिया है जो ग्राउंड का जिसपे कारपेट नहीं बिछी है. सिंपली इफ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस फ्लोर, अगर हम सबसे पहले एरिया ऑफ फ्लोर निकालें और उसके बाद ये एरिया ऑफ जो कारपेट बिछा है इस पे स्क्वायर शेप का उसका एरिया निकालें, इफ वी सब्ट्रैक्ट दीस टू एरियाज विल गेट टू नो कि किस पार्ट में हमारा जो है किस एरिया में जो है कारपेट नहीं बिछा है. तो सिंपली वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन. दिस येलो रीजन का आपको एरिया फाइंड करना है. ठीक है, और जस्ट अ मिनट, ये जो कारपेट जो इस पार्ट में बिछी है इसका एरिया यू हैव टू फाइंड. ठीक है, ये जो इतना कारपेट है इसको छोड़कर जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है आउटसाइड दिस कारपेट, दैट एरिया यू हैव टू फाइंड कि किस पार्ट में जो आपका ये कारपेट है वो नहीं आ रहा है. ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट येलो रीजन. ब्लू रीजन इज योर कारपेट एंड येलो रीजन का एरिया आपको फाइंड करना है. तो क्लियरली इफ वी विल सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ द एंटायर फ्लोर, ठीक है, हम अगर पूरे एंटायर फ्लोर के एरिया में से अगर कारपेट का एरिया माइनस कर देंगे तो देन वील गेट टू नो कि ये जो रिमेनिंग पार्ट है जहां पे कारपेट नहीं बिछी उसका एरिया कितना होगा. ठीक है, इज द क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? क्लास, इज द क्वेश्चन क्लियर? Okay, so let's start. Okay, so first of all you will find the area of the floor. So area of the floor. Area of the floor we'll find with the given length and breadth. Length is length into breadth. Length is your 5 meter long and breadth is your 4 meter. ठीक है, तो 5 4 will give you 20 and unit will be in terms of meter square. Square meter. So this is the area of the floor. Now we find the area of the carpet. Area of the carpet is side into side. And what is the side given in the question of the carpet? It is given as 5 meter into 5 meter. So your area will be, sorry, the side is 3 meter. Ma'am, it is 3 meter. Yes, I got it. It is 3 meter. So 3 into 3 meter will give you 9 meter square. 9 square meter. So we have find the area of the floor and area of the carpet as well. Now if you have to find कि किस part में जो है carpet नहीं बिछा, you have to subtract these two areas. Okay, so area of the floor that is not carpeted, area of the floor that is
not carpeted. You will write it as area of floor. Don't forget to write this statement, then only you will subtract. Minus area of the carpet. Area of the floor is how much? Area of the floor is 20 square meter minus area of the carpet is 9 square meter. So 20 minus 9 will give you how much? 12 या 11 square. Okay. Okay, so 11 is the answer of this question. ठीक है? तो this was your question number 8. सबसे पहले if you will pictorially depict the जो भी आपको चीजें दी है अगर उसको आप ड्रॉ करके फिगर के फॉर्म में रिड्यूस करोगे then it will be very easy for you to understand what you have to find in the question. ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको ट्राई टू ड्रॉ इट जिस फॉर्म में वो गिवन है. इफ फ्लोर इज गिवन ड्रॉ द फ्लोर, उसके ऊपर कारपेट लगी है देन यू हैव टू ड्रॉ लाइक दैट. उसके बाद यू हैव टू फाइंड कि आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है. यस मैम 6 और 7 आ रहे हैं इस क्वेश्चन में. 6 और 7 क्या है मैम 10.3 एक्सरसाइज में 6 एंड 7 क्वेश्चन आ रहे हैं. यस बेटा मैंने उसको रिड्यूस पार्ट में तो नहीं बताया. इट इज सपोज टू बी योर होमवर्क ना. होमवर्क मैंने भेजा था उसमें these questions if I have not solved it on the board they were in the homework part. So please check it once. Okay. So now we are going to solve question number 9. Mute yourself. Okay, the question number 9 is 5 square flower beds each of sides 1 meter are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. What is the area of the remaining part? So we'll draw the figure again. This is a rectangular garden or park you may say, जिसकी dimension is 5 meter long and it is 4 meter wide. These are the dimension of this rectangular land जिसके ऊपर 5 square flower beds, छोटे छोटे क्यारियां या flower beds आप कह सकते हो. ये 5 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5. ठीक है. और इनकी डायमेंशन क्या है? इनकी डायमेंशन है ये these are of 1 मीटर. ये सारे 1 मीटर के हैं. नाउ इस क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड कि ये फ्लावर बेड्स के अलावा जो एरिया बचा है उस एरिया को यू हैव टू फाइंड. ओके that green part you have to find in the question. The area of the land is given to you 5 meter. उसके डायमेंशन दिए 5 मीटर और 4 मीटर. उस लैंड में यू हैव 5 फ्लावर बेड्स जिनकी डायमेंशन है 1 मीटर. तो 1 मीटर की डायमेंशन सिर्फ एक पार्ट दिया दैट मीन्स दे आर ऑफ स्क्वायर शेप. तो आपको ये जो लैंड है रेक्टेंगुलर लैंड अगर आप उसका एरिया निकाल के यू विल सबट्रैक्ट द एरिया ऑफ द 5 फ्लावर बेड्स देन यू विल गेट टू नो कि जो रिमेनिंग एरिया है जो रिमेनिंग एरिया है वो आपका कितना है. ठीक है. Okay, so in this question, first of all, we'll find the area of the rectangular land, then we'll find the area of 5 square beds. फिर दोनों को subtract करेंगे, then we'll get to know कि remaining part का area कितना है. First of all, find the area of the land. Question number 9. Area of rectangular land. What are the dimensions? Dimensions were
5 meter मैं or 4 meter. So length into breadth. Nobody will write L and B in their copy. You have to write full length and breadth. So length is 5 meter and breadth is 4 meter. So it will give you again 20 square meter. ठीक है? Now we'll find the area of one flower bed. Area of one flower bed. ठीक है? Side into side. That is side is 1 meter into 1 meter. So your answer will be 1 square meter. Since in the question there are 5 flower beds given to you, so we'll multiply the area of one flower bed into 5. ठीक है, एक फ्लावर बेड का एरिया आपने निकाल लिया और क्वेश्चन में आपको सेम 5 फ्लावर बेड्स मिले हैं, तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड. तो हम क्या करेंगे, एक फ्लावर बेड के एरिया को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट टू नो कि 5 फ्लावर बेड का एरिया कितना है. ठीक है, सो एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड is equal to 5 multiplied by area of one flower bed. Okay, so what is the area of one flower bed? Area of one flower bed is 1 square meter. So 5 multiplied by 5 will give you 5 square meter. एक फ्लावर बेड का एरिया 1 स्क्वायर मीटर है, तो 5 फ्लावर बेड का एरिया 5 स्क्वायर मीटर हो गया. उसके बाद वी विल फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड. एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट of the who's this land is equal to area of a rectangular land minus area of 5 flower beds. Okay, so area of rectangular land it was 20 square meter and area of 5 flower beds is equal to 5 square कितना है 5 square meter. So 20 minus 5 will give you 15. So your answer will be 15 square meter. ठीक है, वेरी इसमें एक चीज जो ध्यान देने वाली ये थी कि आपको 5 स्क्वायर बेड का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है. तो इवन इफ आपने पिछले क्वेश्चन में हमारे पास एक कारपेट थी तो हमने एक एरिया को माइनस किया, लेकिन यहाँ पे वी हैव 5 फ्लावर बेड्स ऑफ स्मॉलर डायमेंशन, 5 स्क्वायर बेड्स हैं. तो मेक श्योर कि जब आप एरिया माइनस करें तो आप 5 स्क्वायर फ्लावर बेड का एरिया माइनस करें. ओके, देन ओनली योर आंसर विल बी करेक्ट. सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद जो भी गिवन है try to draw the facts which are given to you in the question. Pictorially उसको represent करेंगे, then it will be very easy for you to find the answer. ठीक है, रेस्ट इज जो एक बार आपको ये पिक्चर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, देन उसके बाद ये कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी इजी टू डू. यू नो द फॉर्मूला, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज एंड योर आंसर विल बी देयर. ठीक है, आर बोथ दिस क्वेश्चंस क्लियर टू यू? क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आर क्लियर टू यू क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We'll do another question. This is question number 10, out of which A part I'll solve and B part is not there in your syllabus. Okay, so B part you don't have to do. In this question, a figure, a mixed figure or combined figure you can say is given to you. उसको आपको separately बताना है कि what is the area of the given figure. For that, we'll draw the figure first. फिगर को ड्रॉ करेंगे पहले. इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग. चलो लेट्स स्टार्ट. Class, question number 10 and question number 11 I will be solving in the copy paper and pen and paper,
and then I'll send the picture to you. ठीक है? It is very and it will become very untidy for me to solve it on the board. So after this class I will solve the question and send the picture to you. ठीक है? You may ask it if you are not able to understand. Okay ma'am. So directly we are doing question number 12. Okay, so the question number 12 का B part is not there in your syllabus. A part we will be doing. Question number 12 का B part is not there in the syllabus, so we will do the A part. Let's read the question first. How many tiles whose length and breadth are 12 centimeter and 5 centimeter respectively? एक टाइल की मेजरमेंट दी है, टाइल की डायमेंशन दी है, that is length is 12 centimeter and breadth is 5 centimeter. ठीक है? Will be needed to fit a rectangular region whose length and breadth are respectively given. क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है. ठीक है? इस रेक्टेंगुलर रीजन की डायमेंशन है लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 144 सेंटीमीटर. इस फ्लोर पे आप 12 इंटू 5 12 इंटू 5 सेंटीमीटर की कितनी टाइल्स बिछाओगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है. ये कितनी टाइल्स हमें लगेगी? ठीक है? इस टाइल्स अब लगती है तो ऐसे ही लगती है, जो ये मैंने स्पेसिंग दिखाई है, ये स्पेस नहीं होती ना टाइल्स जब लगती है तो डायग्राम. अब हम इसको कैसे करेंगे? हम सबसे पहले जो भी हमारा फ्लोर है उसका एरिया निकालेंगे, उसके बाद एक टाइल का एरिया निकालेंगे. ठीक है? पूरे फ्लोर का हमने एरिया निकाला, देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ वन टाइल. दोनों को डिवाइड करने पे हमें पता चल जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड बाय अस टू कंप्लीटली फिल दिस रेक्टेंगुलर फ्लोर. ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फ्लोर, देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ वन टाइल. डिवाइडिंग बोथ that is your area of the floor by the area of one tile, we will get to know how many tiles will be required by us to completely tile this floor. ठीक है? तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्लास? यहाँ पे आपको और टाइल्स लगेंगी, है ना? ये टाइल्स यहाँ पे आपको और लगेंगी, स्पेस नहीं होती है जब टाइल्स लगती है. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन. Area of the rectangular region. Area of the rectangular region is length into breadth. ठीक है? लेंथ कितनी है 100 और ब्रेथ कितनी है 144. तो 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इजी. 1 के साथ 144 को मल्टीप्लाई कर देंगे और वी विल जस्ट राइट द जीरोस. Square centimeter. So this is the area of the rectangular region. Now we will find the area of one tile. Area of one tile. What are the dimensions given to you? It is length into breadth. 12 into 5. 12 5s are 60. 60 square centimeter. यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने 100 into 144 लिखा है उसके साथ भी आपको यूनिट्स लिखनी है. I forgot to write. I don't have that much space, but in your copy you will write everywhere wherever you are writing length. Length के नीचे 12 नहीं लिखना है. You have to write 12 centimeter. Breadth के नीचे you have to write 5 centimeter. बेटा, I am tolerating it enough. Okay. Now उसके बाद you will write. बेटा in question number 12 you have given with a rectangular region जिसका dimension is 100 centimeter into 144 centimeter. Question is asking कि उस फ्लोर पे आपको एक टाइल्स पूरे फ्लोर पे बिछानी है. ठीक है? यहाँ पे आपको स्पेसिंग दिख रही होगी, लेकिन आपने अगर फ्लोर देखा होगा टाइल्स वाला तो you must have seen that उसमें स्पेसिंग नहीं होती है. तो अब आपको मार्केट से ये पता नहीं है कि कितनी टाइल्स आपको खरीद के लानी है. तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप एक टाइल का एरिया निकालोगे और पूरे फ्लोर के एरिया से उसको डिवाइड कर दोगे, तब आपको पता चलेगा कि कितनी नंबर ऑफ टाइल्स आई हैव टू परचेज. दिस इज योर क्वेश्चन. अंडरस्टूड द क्वेश्चन क्लास? ठीक है?
So we have find the area of rectangular region. उसके बाद we have find the area of one tile. Now we will find the number of tiles required. ठीक है, तो number of tiles is equal to area of rectangular region. किसके बर्तन नहीं समझ पा रहे हमसे? अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल. वन थिंग मोर, अगर हम ये जो इज इक्वल टू यहाँ लगा दिया है, डिवीजन का साइन ये है, तो ये आपकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जाएगी गलत. जहां पे आपको इज इक्वल टू लगेगा उसी के सामने आप अपना ये लाइन ड्रॉ करोगे. तो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू ये. ठीक है, दिस इज द करेक्ट वे. अभी भी ये थोड़ा सा अप एंड डाउन है, बट इन योर कॉपी जहां पे ये आपका इज इक्वल टू मार्क होगा, ये जो लाइन होगी उसी के सामने आपका नंबर ऑफ टाइल्स लिखा होगा. ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन हमने कितना फाइंड किया था? 14400 स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया ऑफ टाइल कितना था? 60 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, who is this? Okay, so you will divide these two. What will be the answer? Divide 14,400 by 60. What will be the answer, class? Class, tell me the answer. कितना होगा? Okay. Okay, correct. Your answer is correct. Okay. So 60 2 times 120. बस I got the answer. 4 2. ठीक है. 6 4 times 2. ये 0 ऐसे ही आ जाएगा. 0 times. Your answer will be 240. अब ये जो 240 है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा कि उसमें कोई यूनिट लगेगी कि नहीं लगेगी? क्या यूनिट लगेगी वहां पे? You will just write 240 times. ठीक है, तो is the question clear everyone? Again I am telling it once more. क्वेश्चन में a rectangular region was given to you जिसके डायमेंशंस थे 100 into 144 सेंटीमीटर. उस फ्लोर पे, उस डायमेंशन के फ्लोर पे यू हैव टू ले डाउन द टाइल्स. एक टाइल का डायमेंशन आपको गिवन था, दैट वाज 12 into 5. फिर यू हैव टू फाइंड कि आप मार्केट से कितने नंबर ऑफ टाइल्स को परचेज करोगे. तो आप सिंपली क्या करोगे, जो भी रीजन का एरिया है उसको डिवाइड कर दोगे एक टाइल के एरिया से. ठीक है, तो जो आंसर आएगा उतनी ही टाइल्स आप परचेज करके लाओगे. दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन. यू मे अप्लाई दिस क्वेश्चन, हेल्प योर पेरेंट्स थ्रू दिस. आप क्योंकि आपने ये पढ़ लिया, तो एनीबडी इज इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस या जिसके घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, ही और शी मे कैन यूज दिस कंसेप्ट. इसी तरह से मैथ्स को आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर सकते हो. मैथ्स इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू योर कॉपी एंड बुक्स एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, गेनिंग द मार्क्स. इट इज मच मोर देन दैट. ठीक है, तो ये सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं आपको ये एरिया और मेंसुरेशन पढ़ने के. ठीक है, इसी का ये सब यूज होता है. सो टुमारो वी विल स्टार्ट विद अनदर चैप्टर, मे बी डेटा हैंडलिंग, क्योंकि आई डोंट वांट टू ब्रेक द अलजेब्रा इन योर दिवाली वेकेशंस. ठीक है, आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू इट ऑल टुगेदर. सो वील डू डेटा हैंडलिंग, दैट इज अ वेरी इजी टॉपिक. ओके, सो वील मीट इन अनदर क्लास. थैंक यू एवरीवन.